જય અવધૂત. નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર બિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાનિદાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. આજના ગુરુવારની શરૂઆત આપણે સૌ પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાના સ્વાગતથી કરીશું. બિપિનચંદ્ર પટેલને નમ્ર વિનંતી છે કે સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત થાય અને પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરે. તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ રહેવો જોઈએ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણે નવા વર્ષમાં પ્રવેશ કરી ચૂક્યા છે અને શ્રદ્ધામય પુરુષાર્થ પખવાડી સમાચાર પત્રનું લવાજમ પણ રિન્યૂ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. તો જેમનું પણ લવાજમ રિન્યૂ કરવાનું બાકી હોય તે સત્વરે અહીં પૈસા જમા કરાવી દઈ અને તાત્કાલિક લવાજમ રિન્યૂ કરાવી દઈ. બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય શ્રી સાનિદાદાના મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ છે. મંદિરના અર્થે જે પણ દાન ધર્મ કરવા માગતા હોય એ ઓફિસના ટેબલ પર દાન નોંધાવી શકે છે. આપ ઓનલાઈન માધ્યમથી પણ પૈસા ટ્રાન્સફર કરીને દાન નોંધાવી શકો છો. તો આ એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રહે. 26મી જાન્યુઆરી પ્રજાસત્તાક દિન નિમિત્તે પરમ પૂજ્ય સોજરાએ તિરંગા મેરી શાન તિરંગે મારી જાન કેમ્પેન કરવાની સૌને અપીલ કરી હતી અને ખૂબ જ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. લગભગ 350થી પણ વધારે ગામડાઓમાં સૌ નાથ ભક્તોએ તિરંગો લહેરાવીને સલામી આપીને આ કેમ્પેનમાં ભાગ લીધો હતો. નાના ભૂલકાઓથી માંડીને 90 વર્ષથી બી વધુ વયના વડીલોએ ઘરે ઘરે તિરંગો ફરકાવ્યો હતો અને અભૂતપૂર્વ પ્રતિસાદ આપ્યો હતો. માત્ર શ્વાસ લેવાથી સાબિત નથી થઈ જતું કે તમે જીવતા છો, પરંતુ ગુરુ આદેશથી ગુરુદેવના આવા કાર્યોમાં આવો સુંદર પ્રતિસાદ આપીને જોડાઈને એક જે હાકલ કરી છે તેની સામે પોતાનું કાર્ય કરીને બતાવવું એ પણ એક સાબિતી છે કે તમે ગુરુ આદેશનું પાલન કરો છો. અને આપ સૌ નાથ ભક્તોએ એ કરીને બતાવ્યું છે. તો એના માટે આપ સૌ નાથ ભક્તો માટે બી એક તાળીઓનો ગડગડાટ થઈ જાય. અને આવા સુંદર કાર્યો કરતા રહેવાની આપણને પ્રેરણા આપવા બદલ અને આપણને જાગતા રહેવા બદલ તો ગુરુદેવનો ખૂબ ખૂબ આભાર હોય જ. તો પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદા માટે પણ એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. આવા કાર્યો સતત કરીને આવા કાર્યોને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી આપણે લોકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે. અને એના માટે પૂજ્યશ્રીનો જે વિચાર કે ભાઈ ફોટોન મેજિક ગ્રુપ, તો ફોટોન મેજિકનો આમાં ખૂબ જ મોટો ફાળો છે. અને એમાં જોડાયેલા સૌ યુવાનો આ ફોટો શેર કરીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરી રહ્યા છે, જેથી બધાને ખબર પડી રહી છે કે પૂજ્યશ્રીના કાર્યો કેટલા વેગથી થઈ રહ્યા છે. ફોટોન મેજિકમાં નવી ભરતી પણ ચાલુ જ છે. આ રવિવારે ફોટોન મેજિકમાં નવી ભરતી કરવામાં આવશે. પણ જે પણ યુવાનો છે, વડીલો છે, પણ વડીલો પણ જોડાઈ શકે છે. તો જે પણ જોડાવા માગતા હોય એ 99-137-19-765 નંબર પર વોટ્સએપ કરીને જણાવી શકે છે. અને સૌ અવશ્ય જોડાવો. ફોટોન મેજિકની ભરતી ચાલુ જ છે. આજનો ભંડારો બિપિનભાઈ ભણાભાઈ પટેલ દેવસર તરફથી રાખવામાં આવ્યો છે. એ ઉપરાંત ભંડારામાં નવીનભાઈ ચૌધરી તરફથી શ્રીખંડનું યોગદાન આપવામાં આવ્યું છે. ધર્મેશભાઈ નટુભાલ પટેલ ધરમપુર તરફથી જલેબીનું યોગદાન આપવામાં આવ્યું છે. તો પૂજ્યશ્રીની એ જ પ્રાર્થના કે ગુરુદેવની કૃપા એમના પર સદા વરસતી રહે. નવનાથ ધામના ભંડારામાં અન્નક્ષેત્ર યોગદાન આવ્યું છે. ઝલક પટેલ વાંદરવેલા 50 કિલો ચોખા, છોટુભાઈ પટેલ વાસદા 40 કિલો રતાળુ કંદ, રમુજીલાલ શંકરભાઈ પટેલ સિંગાળ 60 કિલો રતાળુ કંદ, દક્ષાબેન ભરતભાઈ પટેલ ડુમલાવ 20 કિલો ચોખા. તો આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આજના પાવન દિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટેદાદાને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચારગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત.
ॐ कीर्तिलक्ष्मी नमस्तेषु विष्णुवक्षस्थले स्थितम् कीर्ति देहि श्रियं देहि सर्वकामश्च देहिनाम् ॐ विद्यालक्ष्मी नमस्तेषु ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी विद्या देहि कला देहि सर्वकामश्च देहिनाम् अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अलख निरंजन। हम सबके हृदय में कीर्ति स्वरूप में उपस्थित, पुण्य कीर्ति स्वरूप में उपस्थित और श्रियम देहि, कला देहि, विद्या देहि ऐसी माँ भगवती के स्वरूप में उपस्थित हमारे सद्गुरु श्री सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, ऐसे सभी नाथ भक्तों को, सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। मनुष्य जीवन में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, एक प्रेय मार्ग और दूसरा श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग का अर्थ होता है जिस मार्ग पे हमें सुख प्राप्त हो, जिस मार्ग से हमें साधन की प्राप्ति हो और जिस मार्ग के द्वारा हम हमारे जीवन के भोग विलास से तृप्त हो सके, ऐसा मार्ग जिसे कहा गया है प्रेय मार्ग। और दूसरा मार्ग होता है श्रेय मार्ग। और श्रेय मार्ग का अर्थ है जहां जीवन में केवल और केवल आत्म कल्याण का मार्ग हो, उसे श्रेय मार्ग कहा गया है। हमारा जीवन या दो में से किसी भी एक मार्ग के ऊपर ही चल सकता है। अगर जीवन में दोनों मार्ग हो तो हो सकता है कि दोनों मार्ग एक दूसरे के सहयोगी हो जाए, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि ये दोनों मार्ग एक दूसरे के विरोधी मार्ग है। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल और केवल सुख सुविधा और भोग विलास की प्राप्ति रखता है, वह स्वाभाविक है कि वो आत्म कल्याण के मार्ग से बहुत दूर है। और जो व्यक्ति केवल और केवल आत्म कल्याण की इच्छा करता है, वह भी स्वाभाविक है कि भोग विलास के मार्ग से वो कोसों दूर है। लेकिन जहां भौतिक जीवन में हम जीते हैं, वहां ज्यादातर हमारी शुरुआत प्रेय मार्ग से ही होती है। और प्रेय मार्ग जो है
ये नाशवंत सुखों की प्राप्ति का मार्ग है, दैहिक सुखों की प्राप्ति का मार्ग है। हमारे जीवन में उठने वाली कामना, हमारे जीवन में बसने वाली वासना से प्रेरित मार्ग प्रेय मार्ग है। इसलिए आप देख सकते हैं कि आज भी हम जो जीते हैं वो ज्यादा से ज्यादा यही चाहते हैं कि हम धन कमाएं, हम संपत्ति कमाएं, हम जीवन में धन और संपत्ति का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा सुविधा एकत्र करें। और जो भी हम कमाते हैं, क्यों कमाए, जिसका उपयोग हम हमारे उपभोग में ले सके। लेकिन कभी हमने ऐसे सोचा है कि हम धन कमाए और यह धन से लोक कल्याण करें? कभी हमने ऐसे सोचा है कि हम जो जीवन में साधन सुविधा एकत्र करते हैं, चलो उसका उपयोग समाज सेवा के पीछे हो? लेकिन ज्यादातर हमारा जीवन प्रेय मार्ग की प्राप्ति के पीछे ही चला जाता है। यानी साधन मिलता है, सुख मिलता है, सुविधा मिलती है, फिर भी वो अधिक से अधिक हमें प्राप्त होती जाए, उसी पुरुषार्थ के पीछे हमारा जीवन चला जाता है। लेकिन जिसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो चुका है, जिसने स्वयं माना है कि मैं मानव हूं, मैं नर हूं, या जिसने समझा है कि मानव जीवन के अर्थ क्या है, तो वो स्वाभाविक ही अपना जीवन आत्म कल्याण के पीछे लगा देगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले के राजा महाराजा धन का संग्रह करते थे, उसका उपभोग भी करते थे, लेकिन जब उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती थी जिसके द्वारा उनके जीवन का मार्ग प्रेय से श्रेय की ओर चला जाता था। राजा अशोक, वो युद्ध करता था, दूसरे साम्राज्यों में अपना राज्य स्थापता था, लेकिन जब उसे एक छोटी बालिका मिलती है और उसे वो जीवन का अर्थ समझा देती है, तो हमने देखा है कि वही राजा अशोक, चक्रवर्ती सम्राट, अपना सब कुछ त्याग करते हुए संन्यास मार्ग की ओर चला जाता है। हमने सिकंदर को भी पढ़ा है, सिकंदर को भी सुना है, पढ़ा है, और सिकंदर की उत्कंठा यही थी कि उसका राज्य पूरे विश्व में फैल जाए। उसके जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटित हुई, लेकिन उसके जीवन का, उसके हृदय का परिवर्तन न हो सका। तो अंत में सिकंदर दुखी होते हुए, अपनी इच्छा को अधूरी रखते हुए, दोनों हाथ खुले रखते हुए इस दुनिया से वो विदाई ले गए। और तभी से ये कहावत हो चुकी कि हम आते हैं मुट्ठी बांध के, और जब जाते हैं तो मुट्ठी खोल के चले जाते हैं, हमारे हाथ खुले के खुले रह जाते हैं। तो यहां से ही हम समझ सकते हैं कि हम हमारे जीवन के मार्ग की शुरुआत तो हम श्रेय मार्ग से कर लेते हैं, प्रेय मार्ग से कर लेते हैं, लेकिन बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिसे प्रेय मार्ग के साथ साथ
अपना जीवन श्रेय मार्ग की ओर ले जाने की एक सुविधा प्राप्त हो जाती है, ले जाने का एक सौभाग्य उसे प्राप्त हो जाता है। और जहां श्रेय और प्रेय मार्ग दोनों हो, वहां आपने देखा ही होगा कि जहां प्रेय मार्ग हो, जहां श्रेय मार्ग आता है, वहां प्रेय मार्ग उसका विरोध करता है। आत्मकल्याण हम सोच नहीं सकते, हमारा जीवन सिर्फ भोग विलास के पीछे चला जाता है। इसलिए हमारे जीवन की सफलता क्या है और हमारे जीवन की निष्फलता क्या है, यह अगर हमें आकलन करना हो तो जीवन में हमें सुख मिला और कितना सुख मिला यह सोचते हुए उसका आकलन नहीं कर सकते। जीवन में मुझे कितनी सुविधा मिली यह सोचते हुए उसका आकलन नहीं कर सकते। जीवन में मुझे कितनी पद प्रतिष्ठा मिली यह सोचते हुए भी उसका आकलन नहीं कर सकते। या जीवन में मुझे कितनी शांति मिली यह सोचते हुए भी उसका आकलन नहीं कर सकते। अगर उसका आकलन ही करना है, उसका मंथन ही करना है, तो हमें सोचना होगा कि हमने हमारे जीवन में कितनी कीर्ति कमाई है। क्योंकि प्रतिष्ठा हर कोई के पास हो सकती है, जीवन में साधन संपन्नता हर कोई के पास हो सकती है, जीवन में सुख हर एक व्यक्ति के पास हो सकता है, या यही सुख साधन या दोनों से थोड़ी बहुत शांति हर एक के जीवन में हो सकती है। लेकिन जीवन में हमने कीर्ति कितनी कमाई है उसका अगर हम आकलन करेंगे तो हमें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा कि हमारा जीवन सफल है या निष्फल है। इसलिए हमें जीवन में कीर्ति प्राप्त हो, हम कीर्तिवान बने, और अगर हम कीर्तिवान बने तो उसी से हम समझ पाएंगे कि हमारा मानव जीवन सफल हुआ है या नहीं हुआ है। प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग ये दोनों के ऊपर का जीवन केवल और केवल अपनी कीर्ति के ऊपर सफल हुआ है या नहीं, उससे ही हम जान सकते हैं। और इसीलिए आज के मैसेज में मैंने यहां लिखा है कि जो जीवन में हमें कीर्ति मिलती है वह कीर्ति स्वयं लक्ष्मी समान है। कीर्ति लक्ष्मी नमस्तेषु, कि हे मां भगवती आप कीर्ति स्वरूप में हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं। क्योंकि कीर्ति पाना या कीर्ति फैलाना यह हमारे खुद के हाथों में नहीं है। तो जैसे लक्ष्मी प्राप्त करना हमारे नियंत्रण में नहीं है, मार्ग अलग अलग है लक्ष्मी प्राप्ति के। कोई अच्छे कामों से भी प्राप्त कर सकता है, कोई बुरे कामों से भी प्राप्त कर सकता है, कोई लांच रुश्वत लेके हुए भी प्राप्त कर सकता है, कोई किसी का छीनते हुए भी प्राप्त कर सकता है, कोई नीति नियम से भी प्राप्त कर सकता है। यानी लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं, लेकिन उसे कैसे प्राप्त करना उसकी सत्ता हमारे नियंत्रण में नहीं है। ठीक वैसे ही हम विविध प्रकार के कर्म कर सकते हैं, लेकिन कौन सा कर्म करने से हमें जीवन में कीर्ति प्राप्त हो, यह सत्ता हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति दुर्लभ है, हम चाहे उतनी शायद नहीं कर सकते, कम ज्यादा हमें मिल सकती है, वो लक्ष्मी का उपयोग हमारी बुद्धि से हम योग्य अयोग्य रूप में कर सकते हैं। ठीक वैसे ही कीर्ति यह भी लक्ष्मी है। वह कितनी हमें प्राप्त हो यह हम नहीं कह सकते,
उसका उपयोग हम कैसे करें ये हम नहीं कह सकते। प्राप्त होगी भी या नहीं होगी ये भी हम नहीं कह सकते। यानी जो इसका मिलना ही दुर्लभ हो, जो केवल हमें उपलब्ध हो सकती है हमारे भाग्य से, उसे कहा जाता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का एक स्वरूप है कीर्ति। और यहां कहा गया है कि विष्णु वक्षस्थले स्थितम, ये ऐसी लक्ष्मी जो विष्णु के हृदय के ऊपर स्थिर हो। आपने भगवान विष्णु का चित्र देखा होगा, तो भगवान विष्णु की छाती के ऊपर एक चिन्ह बना हुआ है, पाद चिन्ह। ये ऐसा पाद चिन्ह है कि जैसे हमारी भंवर हो, वैसे भंवर के जैसा एक यहां चिन्ह बना हुआ है। विष्णु भगवान की आप मूर्ति को देखिएगा, दोनों छाती के बीच में एक निशान बना हुआ है। वह निशान को कहते हैं वक्षस्थल। वक्ष यानी ये जो छाती के बीच में जो भाग होता है उसे कहते हैं वक्षस्थल। ये वक्षस्थल हमारे भंवर के जैसा, पाद चिन्ह के जैसा होता है। और इसी स्थल के ऊपर भगवान ने कौस्तुभ मणि को भी धारण किया है। यानी कौस्तुभ मणि को तो धारण किया है, लेकिन कहां किया है कि जहां लक्ष्मी स्थित है। अब आप देखिए, भगवान विष्णु के पास लक्ष्मी दो प्रकार से है। एक लक्ष्मी उनके पैर दबाती है, एक लक्ष्मी उनके हृदय में स्थिर हो चुकी है। ऐसे दो प्रकार की लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी के दो स्वरूप भगवान विष्णु ने अपने पास रखे हैं। अब यहां हम सोचेंगे कि जो लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा करती है उसका चित्र तो हमने देखा है, लेकिन यहां लिखा गया है कि वक्षस्थले स्थितम, कि जो यहां वक्षस्थल के ऊपर स्थिर बन चुकी है, यह लक्ष्मी दिखाई नहीं देती, लेकिन यह श्लोक में उसका उल्लेख किया गया है। तो लक्ष्मी दो प्रकार की है। एक को कहा जाता है महालक्ष्मी और दूसरी को कहा जाता है लक्ष्मी। जो एक लक्ष्मी जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, जो भगवान विष्णु की चरण वंदना करती है, वह लक्ष्मी भौतिक लक्ष्मी है, जिसे धन कहा जाए, जिसे पैसा कहा जाए। यह भौतिक लक्ष्मी है जो दिखती है। पैसा दिखता है, धन दिखता है, संपत्ति दिखती है। क्योंकि पैसा अगर आपके पास आए तो उसी पैसे से हम ये सब कुछ बसाते हैं, वो दिखता है। धन दिखता है, हमारी प्रतिष्ठा भी दिखती है। तो जो दिखने वाली लक्ष्मी है उसे कहा जाता है लक्ष्मी, दृश्यमान लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के पैरों की वंदना करती है। और ऐसी लक्ष्मी जिसे चंचल कहा गया है, जो आज है कल हमारे पास नहीं होगी, आज नहीं है कल हमारे पास आ सकती है। तो लक्ष्मी का एक स्वरूप जो भौतिक स्वरूप है, वो भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करने वाला स्वरूप, जिसे कहते हैं लक्ष्मी। और एक स्वरूप जो होता है हृदय स्थितम वक्षस्थले स्थितम, कि भगवान के हृदय के ऊपर स्थिर है, जिसे कहते हैं महालक्ष्मी। और वो महालक्ष्मी का अर्थ होता है ज्ञान, वो महालक्ष्मी का अर्थ होता है विद्या, वो महालक्ष्मी का अर्थ होता है पुण्य कीर्ति। जो हमें दिखती नहीं, बुद्धि जो हमें दिखती नहीं, लेकिन बुद्धि का उपयोग करते हुए
हम जीवन को सफल बना सकते हैं। किसी के पास पैसा ना हो तो चलेगा, बुद्धि हो तो सब कुछ उसके पास आ सकता है। किसी के पास ज्ञान हो तो ज्ञान मार्ग से उसे सब कुछ उपलब्ध हो सकता है। किसी के पास विवेक हो तो अपने विवेक से वो दुनिया में ख्याति प्राप्त कर सकता है। किसी के पास गुण हो तो अपने सद्गुणों से वो जीवन में कीर्ति प्राप्त कर सकता है। यानी हृदय के ऊपर वक्षस्थल में स्थित होने वाली लक्ष्मी, जिसे महालक्ष्मी कहा जाता है, जो कल्याणकारी है, जो अदृश्यमान है, जो बाहर से नहीं आती, जो अंदर से ही हमें मिलती है। पैसा बाहर से आता है, आपकी जेब में पैसा है तो पता चलता है कि पैसा है, बाहर से आया है। अब तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो चुका है, यानी जेब में कोई पैसा रखता नहीं, फिर भी उसके बैलेंस में पैसा जाए, वो बैलेंस से पता चल सकता है कि उसके पास पैसा है। कोई वस्तु लेने के लिए जाए और अपना क्रेडिट कार्ड दे दे, तो लाखों रुपए की वस्तु हो, वो कार्ड स्क्रैच करने से वो वस्तु से मिलती है, कारण उसके बैलेंस में पैसा है। तो जो लक्ष्मी है वो बाहर से आती है, वो दिखती है। हम हमारे मित्रों के साथ या कहीं जाए और सुबह चाय पीते हैं, वो मित्र अपना बटवा खोलेगा और पैसा देगा, तो उसमें नोट रखी हुई पता चलेगी या बटवा बड़ा दिखेगा, तो हम कहेंगे कि पहले तो नहीं था, ज्यादा आ चुका है, क्योंकि बटवा बड़ा बन चुका है। और ज्यादातर ये होता है, साथ में जब जाते हैं और कोई पाकिट खोलता है तो हमारी नजर पाकिट के ऊपर पड़ती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत संभाल के ऐसे करके पाकिट खोलते हैं, जो आपको नजर नहीं डालने देते। कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने खोलते हैं। पॉकेट के ऊपर से हमें पता चलता है कि नोट बड़ी है, पॉकेट बढ़ गया है, तो वो दिखता है, बाहर से आता है। लेकिन वक्षस्थल स्थितम लक्ष्मी, ये अंदर से आती है। विवेक अंदर से जन्म लेता है, ज्ञान अंदर से आता है। बुद्धि खरीदने के बाद नहीं मिलती। बुद्धि खरीदने के लिए कोई दुकान नहीं होती कि जहां पैसा दो और बुद्धि आप खरीद लो। जीवन में गुण खरीदने के लिए, हमारे सद्गुणों को एकत्रित करने के लिए कोई दुकान नहीं, कोई खेत नहीं है कि जहां सद्गुण उगते हैं। बुद्धि के लिए कोई दुकान नहीं रखी गई है। हमें कीर्ति मिल जाए, ऐसी कोई बाहर कोई वस्तु नहीं है जो खरीद के हमें कीर्ति मिले। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, कीर्ति, ये जो भी कुछ है हमारे भीतर से आता है, हृदय के अंदर से जन्म लेता है। और जो जन्म लेता है वो अपने वर्तन में, हमारे वर्तन में जहां जीवन में आ जाता है, वहां से दिखता है कि इसके पास ये संपदा है। तो ये पात्रता अंदर से जन्म लेती है, जिसे कहा जाता है महालक्ष्मी। स्वामी विवेकानंद के अंदर से महालक्ष्मी का जन्म हुआ था। और इसलिए आप देखिए कि उनके पास जितना भी ज्ञान था, ये ज्ञान का उपयोग करते हुए उन्होंने मठ स्थापे, और जितने भी सन्यासी थे उनको उन्होंने शिथिल नहीं होने दिया, उनको जागृत कर दिया धर्म जागरण के लिए। तो यहां से हमें पता चलता है कि उनके हृदय में ऐसी लक्ष्मी निवास करती थी। ये ऐसे धनवान थे जिनके अंदर से जो आया वो दुनिया ने उसका उपयोग किया है। तो वक्षस्थले स्थितम लक्ष्मी का अर्थ होता है महालक्ष्मी, जो दिखती नहीं, अंदर से वो प्रकट होती है। और जहां महालक्ष्मी वक्षस्थल पर निवास करती है, तो उस वक्षस्थल के ऊपर एक पैरों का निशान है। और जहां ऐसे कहा जाता है कि भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु के छाती के ऊपर लात मारी थी। एक बार सरस्वती नदी के किनारे सभी ऋषि तपश्चर्या कर रहे थे। वहां सभी ऋषियों के बीच चर्चा चली
कि ये तीनों देवता है, उसमें से सबसे ज्यादा विवेक किसमें है, या किसमें सबसे ज्यादा शीलता, सात्विकता है, क्योंकि तीनों के पास अलग अलग अधिपत्य है। तो भृगु ऋषि ने कहा चलो मैं जाके देखता हूं और मैं मेरे अनुभव से बताता हूं। देखिए, गुरु जो होता है, गुरु अपने अनुभव की बातें करता है। पंडित जो होता है वो पोथी में से पढ़ के कहता है। तो भृगु ऋषि ने कहा कि चलो मैं जाता हूं और मैं जाके ये देखता हूं कि इनमें से किसके अंदर सत्व गुण ज्यादा है। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, वहां खड़े रहे, ब्रह्मा जी के पास खड़े रहे, उतना आदर उन्हें दिया नहीं गया। ऋषि क्रोध में आए। माता शारदा वहां खड़ी थी, सरस्वती, उन्होंने ऋषि की आक्ता साक्ता करी और ऋषि का क्रोध शांत हुआ। शिव जी के पास चले गए, भगवान शिव ने भी उतना सत्कार नहीं दिया। वहां भी ऋषि ने सोचा कि पूरे कैलाश के अधिपत्य उनके पास है और प्रत्येक जीव में शिव रहते हैं, फिर भी शिव के पास सत्कार नहीं। वहां से भी वो निकल आए, विष्णु भगवान के पास गए, तो वहां जो उन्हें क्रोध चढ़ा था उससे यहां ज्यादा चढ़ गया, क्योंकि ब्रह्मा तो बैठे हुए थे। ज्यादा कुछ सत्कार ब्रह्मा ने नहीं किया, लेकिन ब्रह्मा बैठे थे। शिव आंख बंद करके बैठे थे, ज्यादा सत्कार नहीं किया, लेकिन बैठे हुए थे। विष्णु के पास चले गए तो देखा तो विष्णु तो बैठे भी नहीं थे। भगवान विष्णु शेष शैया के ऊपर लेटे हुए थे और मां लक्ष्मी उनके चरण की वंदना कर रही थी। तो भृगु ऋषि को क्रोध उत्पन्न हुआ कि वो दो तो बैठे थे, ये तो लेटा हुआ है और अपनी पत्नी के पास पैर भी दबा रहा है, तो भोग विलास में है। तो वहां जाके भृगु ऋषि खड़े हुए। भृगु ऋषि ने कुछ कहा, भगवान ने सुना नहीं सुना, आंखें खोली। भृगु ऋषि को क्रोध आया और भृगु ऋषि ने अपनी लात भगवान की छाती के ऊपर मार दी, ये दोनों छाती के बीच में, कि तू कैसा भगवान है कि स्वयं ब्रह्म ऋषि आया है फिर भी लेटा हुआ है, भोग विलास में मस्त है। लात मारी। जैसे यहां लात मारी वैसे यहां पाद चिन्ह हो गया। जैसे यहां लात मारी वैसे भगवान ने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और भृगु ऋषि के पैर पकड़ते हुए कहा कि ऋषिवर, मेरी छाती तो वज्र जैसी है, आपके पैरों को लगा तो नहीं? लाओ मैं आपके पैरों को मैं धो देता हूं, आपके पैरों के ऊपर मैं आपके पैरों को मैं धो देता हूं। और ऐसा जब विवेक देखा कि क्रोध नहीं आया और भगवान ने उनकी लात को स्वीकारा और माफी मांगी, तब भृगु ऋषि ने कहा कि सभी देवताओं में भगवान विष्णु ऐसे देवता है जिसमें आज भी सत्व गुण स्थापित है। और जब यहां लात मारी गई, ये प्रसाद है ऐसा समझ के भगवान ने कहा, ये जो आपने मुझे यहां लात मारी है, मेरे अंदर जो भी कुछ आया था वो आपने मुझे समझाया है, ये चिन्ह मैं सदा मेरे हृदय के ऊपर रखूंगा, क्योंकि गुरु का प्रसाद ये लक्ष्मी ही होता है, महालक्ष्मी होता है। तो मैं इसे स्वीकार करता हूं, ये मेरी संपत्ति है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। और जब जब मैं यहां देखूंगा तब तक मुझे स्मरण होगा कि जीवन में विवेक, सम्मान का बहुत महत्व होता है, जीवन में धर्म का बहुत महत्व होता है। तो भगवान ने उसे स्वीकार किया और उसी जगह के ऊपर भगवान ने लक्ष्मी का स्थापन किया कि एक लक्ष्मी जो मेरे पैरों की वंदना करती है, उसे दुनिया देखती है, उसे दुनिया प्राप्त करने की इच्छा करती है, उसको भाग्य में है तो मिलता है, पूर्व जन्म के ऋणानुबंध से उसे प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो लक्ष्मी मेरे गुरु ने मुझे दी है, ये मेरे हृदय में है, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं, ये लक्ष्मी मैं उसी को देता। इसलिए कहा गया है ना कि राजा प्रसन्नात गज भूमि दानम, कि राजा जब प्रसन्न होता है तो गज भूमि का दान कर देता है।
लेकिन गुरु प्रसन्नात सद ज्ञान दानम। वैसे जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ज्ञान का दान करते हैं। राजा संपत्ति दान करता है, लेकिन भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने हृदय से ज्ञान का दान करते हैं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने हृदय से सद्बुद्धि का हमें दान करते हैं। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो अपने अंदर से विद्या का दान करते हैं। भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसमें हमें कीर्ति प्राप्त होती है। इसलिए ये ऐसी अदृश्य लक्ष्मी है जो भगवान की प्रसन्नता से हमें मिलती है, हमारे अंदर हमें प्राप्त होती है। उसे कहा गया है अदृश्य लक्ष्मी। और आज की जो लक्ष्मी की बात मैं करता हूं वो है कीर्ति। आज हमें जीवन में कीर्ति चाहिए, हमें जीवन में ख्याति चाहिए, हमें जीवन में यश चाहिए, हमें जीवन में प्रतिष्ठा चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसे इसकी जरूरत नहीं। हर एक व्यक्ति की चाहना है कि वो जो करे उसमें उसे मिले। तो ये जितने भी शब्द है, मान यानी प्रतिष्ठा, यश, ख्याति, कीर्ति, ये जितने भी शब्द है, ये सभी शब्द का अर्थ एक ही होता है, लेकिन प्रत्येक का अर्थ जहां जहां होता है वहां वहां उसके अवलोकन कुछ अलग अलग किए गए। लेकिन ये जितने भी शब्द है, ये शब्द जो भी है वो एक ही है। जैसे पैसा, जैसे रुपया, जैसे पैसे की नोट, ये जो भी चलन है एक ही है। वैसे ये जितने भी नाम है उसका भावार्थ तो एक ही होता है। अंत में ये सब कीर्ति है। लेकिन आप देखिए कि मैंने यहां लिखा है हमें कैसी कीर्ति प्राप्त करनी है। कीर्तिम देहि श्रियम देहि सर्व कामस्य देहि नाम। कि हमारी मनोकामना पूरी हो वो तो तू पूरी करने वाली है, हमें कीर्ति भी देने वाली है। श्रियम देहि, हमें श्रेय भी देने वाली है। लेकिन मैंने यहां लिखा है कि हमें कैसी कीर्ति चाहिए, जो कीर्ति पुण्यवान कीर्ति हो, पुण्य कीर्ति चाहिए। क्योंकि कीर्ति बहुत प्रकार की होती है। आप देखिए, एक कीर्ति जिसे हम कहते हैं नामना, लेकिन वही नामना जब बिगड़ जाए तो उसे कहते हैं अपकीर्ति। यानी कीर्ति सबकी हो सकती है। जो खराब आदमी हो उसकी भी कीर्ति होती है, अच्छा आदमी हो उसकी भी कीर्ति होती है। जो धर्म करने वाला है उसकी भी कीर्ति होती है, जो अधर्म करने वाला है उसकी भी कीर्ति होती है। कीर्ति का अर्थ है, कीर्ति का अर्थ आप ले लीजिए, कीर्ति का अर्थ है नामना। कीर्ति का एक अर्थ होता है आपकी सुगंध। फूलों में विविध प्रकार की सुगंध होती है। कोई फूल में बहुत अच्छी खुशबू है, तो कोई फूल ऐसा होता है कि जिसकी खुशबू हमें पसंद नहीं होती। यानी सुगंध अच्छी भी होती है, गंदी भी होती है। ठीक वैसे ही कीर्ति अच्छी भी होती है, खराब भी होती है। कीर्ति का एक गुण है फैलना। जैसे सुगंध फैलती है, वैसे कीर्ति का एक अर्थ होता है फैलना। वो फैलती है एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से राज्य में, राज्य से देश में, देश से पूरे विश्व में वो फैलती है। और इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि इनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली है। फैली है का अर्थ क्या हुआ कि कीर्ति एक सुगंध जैसी है, वो फैलती है। लेकिन सुगंध कैसी है, अच्छी या बुरी, दोनों सुगंध फैलती है। खराब सुगंध हो वो भी फैलेगी, अच्छी सुगंध हो वो भी फैलेगी। खराब सुगंध सूंघ के जो खराब है वो आपके पास आएंगे, और अच्छी सुगंध सूंघ के जो अच्छे वो आएंगे। जहां खराब है वहां अच्छे लोग नहीं जाएंगे, जहां अच्छा है वहां खराब लोग नहीं आएंगे। आपने देखा ना कि मक्खी दो प्रकार की होती है।
एक मक्खी ऐसी होती है जो फूलों के ऊपर बैठती है, फूलों की सुगंध सूंघ के उसके पास जाके बैठती है, जिसमें से मध निकलता है। एक मक्खी ऐसी होती है जो फूलों के पास नहीं जाती, वो गटर के पास बैठती है, वो भी मध बनाती है। मध के जो पूड़े हैं दोनों के बनते हैं, लेकिन जब जो जानने वाला आदमी होता है, जो जानकार होता है, वो कहेगा ये फूलों पे बैठने वाली है, ये गटर पे बैठने वाली है। आप जो मध निकालते हो, वो जानने वाला हो कहेगा ये फूलों का मध है, इसको निकालिए, ये गटर का मध है, इसको उड़ा दीजिए। तो गंदगी के ऊपर बैठने वाली ये दुर्जन, सुगंध दोनों के पास होती है, खराब भी होती है, अच्छी भी होती है। मक्खी दो प्रकार की होती है, अच्छे पे फूल पे भी बैठती है, गटर के ऊपर मध तो दोनों बना देती है, लेकिन एक जो शहद बनता है वो हमें काम लगता है, एक जो होता है वो कभी काम नहीं लगता। दवा उसी की बनती है जिसमें अमृत हो, लेकिन जो दूसरा होता है जो कुछ काम का नहीं होता। ठीक वैसे ही है कि कीर्ति दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छे लोग होंगे वो अच्छी जगह जाएंगे, जो बुरे हैं वो बुरे के पास जाएंगे। दोनों कुछ ना कुछ तो लाएंगे। अच्छे आएंगे वो संस्कार लेके आएंगे, और जो बुरे होंगे वो कुसंस्कार लेके आएंगे। जो संस्कार आएंगे वो भी फैलेंगे, दूसरों को मिलेंगे, जिससे फायदा होगा, और कुसंस्कार आएंगे वो भी दूसरों को मिलेंगे, उससे नुकसान होगा। तो कहने का अर्थ होता है कीर्ति क्या है? तो कीर्ति एक सुगंध है जो फैलती है, और जब फैलती है तो नामना हो जाती है, ख्याति हो जाती है। लेकिन वो जो नामना होती है, वो जो ख्याति होती है, वो ख्याति दो प्रकार की है, एक अच्छी और एक बुरी। किसी का नाम अच्छे तरह से लिया जाता है, रावण का नाम खराब रूप से लिया जाता है, राम का नाम अच्छे रूप में लिया जाता है। राम की पूजा मंदिरों में होती है, रावण की कोई पूजा नहीं करता। राम की मूर्ति की स्थापना होती है, और दशहरे में हर साल रावण को जलाया जाता है। राम और रावण एक ही समय में तो हुए थे, राजा तो दोनों थे, दोनों के पास कीर्ति थी। रावण की भी कीर्ति त्रिभुवन में फैली थी, देवता हो या दानव हो, सब रावण का कहा मानते थे, कीर्ति तो उसकी भी त्रिभुवन में थी। राम की भी फिर कीर्ति त्रिभुवन में फैली। लेकिन आप देखिए, ख्याति तो दोनों की थी, नाम तो दोनों का फैला, लेकिन एक का नाम आदर्श के रूप में लिया जाता है और दूसरे का नाम कभी लिया नहीं जाता। जो लड़के जन्मते हैं उसका नाम राम रखा जाता है, लेकिन कोई लड़का जन्मता है उसका नाम कभी रावण नहीं रखा जाता। तो आप देखिए, यानी कीर्ति फैलती है, सुगंध फैलती है, अच्छी होती है, बुरी होती है। जो अच्छा है उसे अच्छा लगे वहां जाता है, जो बुरा है वो बुरे के पास जाता है। लेकिन सोचिए कि ये जो कीर्ति फैलती है, ये जो सुगंध फैलती है, ये सुगंध आती कहां से है? ये किसकी सुगंध है या ये किसकी ख्याति है? तो पता चलेगा हमारे कर्मों की सुगंध है। ये जो नामना हुई है हमारे काम से हुई है, हमारे कर्मों से हुई। कर्म सुगंध फैलाते हैं, कर्म नाम बनाते हैं। लेकिन कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कोई दारू बेचे उसका भी नाम होता है, और कोई दूध बेचे उसका भी नाम होता है। नाम तो दोनों का हो जाता है, ख्याति दोनों की होती है, कीर्ति दोनों की फैलती है। यानी ये जो सुगंध फैलती है ये कर्मों की सुगंध होती है। लेकिन कर्म कहां से बनते हैं, उसका प्रोडक्शन कहां से होता है? तो कर्म का प्रोडक्शन हमारे चरित्र से होता है। हमारा चरित्र कर्म बनाता है, और हमारा चरित्र जो कर्म बनाता है, वो कर्म जब हम करते हैं तब कीर्ति फैलती है।
और वही कीर्ति नामना में बदल जाती है, ख्याति में बदल जाती है। तो अंत में जो भी कुछ आता है वो चरित्र के ऊपर आ जाता है, क्योंकि चरित्र कर्म का प्रोडक्शन करता है, कर्म बनाता है। राम का कर्म था प्रजा को बचाना, रावण का कर्म था प्रजा का शोषण करना। राम के चरित्र को देखिए कि राम का चरित्र मंगल भवन अमंगलहारी, अमंगल को हरने वाला मंगल करने वाला चरित्र था। और रावण का चरित्र देखिए आप कि रावण का मार्ग ही प्रेय मार्ग था, जहां सुख, सुविधा, संपत्ति, भोग, विलास, साम्राज्य, ये सब उसे चाहिए था। तो रावण के चरित्र से जो प्रोडक्शन होता था कर्मों का, उसकी कीर्ति बनाता था, वो ही कीर्ति उसकी नामना बनी। लेकिन रावण के पास जाने वाले जितने भी थे वो राक्षस थे, और राम के पास जो आने वाले थे ये सज्जन थे। जब हनुमान जी लंका में चले गए, और लंका में जब हनुमान जी गए और हनुमान जी ने सोचा कि यहां पूरी लंका में कोई तो सज्जन होगा। हनुमान जी जहां जहां गए, अभी पता कैसे चले कि कौन सज्जन है? जहां जहां गए सब राक्षस ही रहते थे। तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें दोनों की कीर्ति, दो व्यक्ति होंगे, राक्षस और देव दोनों होंगे, कोई संत होगा। यहां तो पूरी लंका ही ऐसी दिखती है, लेकिन कोई तो होगा इसमें, तो कैसे मैं पहचानूं? तो बाद में हनुमान जी ने सोचा कि सबके घरों के आगे मैं देखता हूं, किसी के घरों के पहले तुलसी का क्यारा है क्या? जो तुलसी का क्यारा जो रखता है वो दिया भी करता होगा। जो तुलसी के क्यारे पे दिया करता है वो विष्णु की आराधना करने वाला होगा। उसके दरवाजे को मैं देखूं तो दरवाजे के ऊपर कौन से चिन्ह लगे हैं। अगर किसी के दरवाजे पे गदा है, किसी में चक्र है, किसी में पद्म है, किसी में शंख है, तो मैं ये मानूंगा कि ये किसी साधु का घर है। तो ऐसे हनुमान जी ढूंढते ढूंढते गए, और एक जगह पे उन्हें क्यारा दिखा, वहां शाम के समय पे दिया दिखा। वहां जो दरवाजा बनाया गया था, वो दरवाजे का जो आंगन था वो गोबर से लिपा हुआ दिखा। वहां धूप की सुगंध आ रही थी। वहां जो दरवाजा था उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म के निशान लगे हुए थे। हनुमान जी ने देखा यही कोई साधु का घर होगा, यानी पूरी नगरी में एक तो ऐसा चरित्र है। बाद में देखा तो वो विभीषण का घर था। तो आप देखिए कि हमारा चरित्र, रावण का चरित्र जो था, उसने ऐसे कर्म बनाए जो कर्म से उसकी ख्याति फैली, उसकी कीर्ति फैली। लेकिन ये ऐसी कीर्ति थी जिस कीर्ति ने किसी का विनाश किया। और राम के कर्म ऐसे थे, उसका चरित्र ऐसा था, उसकी कीर्ति ऐसी थी जिसने सबके चरित्रों का निर्माण किया। तो ये जो कीर्ति होती है, ये कीर्ति फैलती है, अपने कर्मों की कीर्ति फैलती है। लेकिन कई बार जो कीर्ति फैलती है वो अपकीर्ति में बदल जाती है। यानी जो कीर्ति है वो तो है, लेकिन कभी अपकीर्ति हो जाती है। और अपकीर्ति का अर्थ होता है जिसका स्वीकार सब करते हैं, लेकिन उसका जब वो स्वीकार करते हैं तो भय से स्वीकार करते हैं। यानी किसी की कीर्ति से आप भय पैदा हो, फिर भी अगर भय लगे फिर भी उसको हमें स्वीकार करना पड़ता है। कोई आपको बंदूक दिखाए और आपके पास काम करवा ले, उसका नाम बहुत हो, कोई गुंडा हो, बंदूक दिखा के आपके पास काम करवा ले, देखा इसका कितना नाम है, बंदूक की जोर से काम करवा ले। हाँ, बंदूक की जोर से क्या है, डर की वजह से उसकी कीर्ति है, लेकिन भय पैदा करती है। उसकी कीर्ति है लेकिन जीवन में अशांति पैदा करती है। उसके पास कीर्ति है लेकिन ऐसी कीर्ति है जो मेरा विनाश कर देगी, इसीलिए उसका वखाण करना जरूरी है। रावण की कीर्ति थी, रावण का सब लोग वखाण करते थे डर के कारण। यानी कीर्ति होती है लेकिन वो अपकीर्ति कहलाती है, जहां हमें डर लगे, जहां हमारा विनाश होने का हमें भय हो।
जहां हमारा शोषण हो, वो कीर्ति होती है अपकीर्ति। और ये अपकीर्ति भी जो होती है वो कई बार अच्छे लोगों के जीवन में भी आती है, बुरे के जीवन में भी आती है। कोई अच्छा है और उसके जीवन में अपकीर्ति आ जाए तो वो दुख की बात है। कोई बुरा है, उसके जीवन में अपकीर्ति हो जाए तो अच्छी बात है। कई बार सज्जनों के जीवन में भी अपकीर्ति आ जाती है, कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे उसके जीवन की बदनामी हो जाती है। और ऐसी व्यक्ति के जीवन में जब अपकीर्ति बन जाए तो दुर्भाग्यवश वो कहलाती है। लेकिन कोई खराब आदमी हो और उसकी अपकीर्ति हो जाए तो समझ लीजिए अच्छी बात है। तो ये जो कीर्ति है, ये कीर्ति कभी अपकीर्ति में भी बदलती है। और इसलिए मैंने यहां कहा है कि हमें कैसी कीर्ति चाहिए कि हमारे जीवन में हमें जो कीर्ति मिले वो कीर्ति हमें पुण्यशाली कीर्ति चाहिए। आज कीर्ति हर कोई ले सकता है। जो लोग दारू बनाते हैं, दारू बनाने वाली कंपनियों के पास भी कीर्ति तो है। बहुत बड़ी दारू की कंपनी है, बहुत बड़े सेठ है, बहुत बड़ी दारू की कंपनी। आप बड़ी बड़ी कंपनी देख लीजिए, दुकानों में बिकती है, महंगे दामों में लोग खरीदते हैं, लेकिन उस ये जो कीर्ति है उससे लोगों का विनाश होता है। कई लोग ऐसे, कई कंपनी ऐसी है जो गुटखा बनाती है, उसकी भी बहुत नामना है। अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट है, विमल है, माणिकचंद है, मिराज है, दारू में भी अलग अलग प्रकार की प्रोडक्ट है। उसकी नामना बहुत है, ब्रांड नेम बहुत बड़ा है, लेकिन उसकी कीर्ति से क्या फायदा? जिससे जीवन में नुकसान हो उनको ही फायदा है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो ऐसी कीर्ति से क्या फायदा? कीर्ति तो ऐसी होनी चाहिए जिससे दूसरों के जीवन बने। कई वस्तु ऐसी है जिससे दूसरों के जीवन बनते हैं। तो ऐसी अगर वस्तु की ख्याति हो, उसका ब्रांड नेम बढ़े, तो उससे फायदा होता है। और उससे जो फायदा होता है उससे दूसरों के जीवन का सर्जन होता है। तो ये जो कीर्ति है, ये कीर्ति भी लक्ष्मी है। जीवन में मिलती है, चली भी जाती है, आज है कल नहीं है। अलग अलग रूप से वो कमाई भी जाती है। लेकिन महालक्ष्मी कौन है? वक्षस्थल के स्थित ऊपर होने वाली महालक्ष्मी क्या है? ये महालक्ष्मी जो होती है वो पुण्य लक्ष्मी होती है। और महालक्ष्मी जो पुण्य लक्ष्मी होती है वही आपके जीवन को सफल बना देती है। पुण्य लक्ष्मी, जिसे मैं पवित्र लक्ष्मी कहूंगा, जिसे मैं पुण्य लक्ष्मी कहूंगा। बाकी जो लक्ष्मी कीर्ति है वो अपकीर्ति हो जाती है। कीर्ति बढ़ने से अहंकार भी आ जाता है, तो अहंकार के कारण भी हमारे जीवन में अपकीर्ति हो जाती है। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, अपने भक्तों के साथ सत्संग करते थे। वहां एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को चैलेंज दी कि आपको तो लोग परमहंस कहते हैं, लेकिन आप सिर्फ नाम के परमहंस हैं। हंस का अर्थ तो होता है कि पानी के ऊपर तैरे। अगर आप परमहंस हो और आपके पास सिद्धि है और लोग आपको महात्मा कहते हैं, तो नदी के ये किनारे से उस किनारे तक पानी के ऊपर चलते हुए आप चले जाइए, तब मैं मानूंगा आप परमहंस। स्वामी जी ने कहा कि ये सिद्धि तो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है? तो हाँ, मेरे पास है, दिखाओ। तो उस व्यक्ति ने अपनी सिद्धि का उपयोग करते हुए पानी के ऊपर चलते हुए यह पार से उस पार वो चला गया और वापस उस पार से इस पार आ गए। देखा, आप अपने आप को महात्मा कहलाते हो, लोग आपके पैर छूते हैं, अपने आप को परमहंस कहते हो, लेकिन आपके पास कोई सिद्धि नहीं। मेरी सिद्धि देखिए, मैं वहां भी गया और यहां से यहां। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, बस इतनी सी बात है, पानी के ऊपर चलते हुए वहां से वहां जाना है और यहां से इतनी सी ही बात है। ये बात तो मैं 2 मिनट में कर देता हूं। कैसे?
एक नाव को बुलाया, उसमें बैठ गए। नाविक को कहा वहां यहां से वहां जाने के कितने रुपए हैं? तो 2 रुपये लगेंगे, चलो ले जाओ। यहां से वहां गए, 2 रुपये दे दिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तूने जो सिद्धि वहां से वहां जाने की जो की, वो भी मैंने की। मैंने नाव का उपयोग करते हुए चला गया, तू उसके ऊपर चलते हुए गया। वो आदमी बोला वो तो बराबर है, लेकिन उसमें आपने क्या बड़ा किया? स्वामी जी ने कहा मैंने बड़ा किया क्या? तो ये जो सिद्धि तूने प्राप्त की उसको कितने साल लगे? तो 12 साल। 12 साल में तू यहां से वहां ही जा सका, मैं 2 रुपये में जाके आ गया। जो कीर्ति प्राप्त करने में तुझे 12 साल लगे, इतना तो ये मैं 2 रुपये में कर सकता हूं। यानी ये कीर्ति नहीं है, ये आडंबर है, ये अहंकार है, ये अपकीर्ति है। जो चीज 12 साल लगे वो मैं 2 रुपये में मैंने कर दी। इस पार से उस पार जाने से अच्छा है लोगों के जीवन में ऐसा कुछ दो जो भवसागर को तैर जाए। यानी तुम वहां से यहां जाओगे, ये तो मछली भी कर सकती है, एक हंस भी कर सकता है, कोई पक्षी भी कर सकता है, और ये तो मामूली है, उसकी कीमत सिर्फ 2 रुपया है, मैं जाके आ गया। तो 12-12 साल इसके पीछे क्यों बिताए? मेरे पास ऐसी सिद्धि है, और वो सिद्धि है मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, कि जो मेरे द्वारा जो जब लोगों को मिलता है, ये सागर तो क्या, ये भवसागर पार कर जाते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो आप समझिए कि कीर्ति से प्रतिष्ठा आ जाए, लेकिन वो प्रतिष्ठा आपके जीवन को सफल नहीं कर सकती। यानी कीर्ति फैलती है तो प्रतिष्ठा आती है, बिना कीर्ति के प्रतिष्ठा नहीं मिलती। सरकार किसी को टिकट दे दे तो बिना प्रतिष्ठा से नहीं, उसकी कीर्ति है तो उसको टिकट मिलता है। तो प्रतिष्ठा कीर्ति से आती है, लेकिन जो प्रतिष्ठा आती है वो प्रतिष्ठा का दूसरों को क्या फायदा? अगर आपकी प्रतिष्ठा दूसरों के शोषण में जाती है, आपकी प्रतिष्ठा से दूसरों के जीवन बर्बाद हो जाते हैं, आपकी प्रतिष्ठा से अधर्म फैलता है, तो ऐसी जितनी भी प्रतिष्ठाएं हैं, ये सभी प्रतिष्ठा अपकीर्ति कहलाएगी। उसका फायदा किसी को नहीं होगा। बाकी कीर्ति तो सबके पास होती है। जो सज्जन है उसके पास भी कीर्ति, जो दुर्जन है उसके पास भी कीर्ति। जो हमारे क्रांतिकारी थे, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे जितने भी क्रांतिकारी थे, वो जो गाड़ी जाती थी अंग्रेजों की, उसमें संपत्ति, सोना और पैसा था, उसको वो लूटते थे, और लूटने के बाद वो पैसे का उपयोग जो क्रांतिकारी थे उनके लिए वो करते थे, देश के बचाने में करते थे। किसी ने उनको पूछा कि तुम तो लूटने वाले हो, तब उन्होंने कहा कि हाँ हम लूटते हैं, लेकिन देश के लिए लूटते हैं, और देश में इसके देश के जो क्रांतिकारी है उसके पीछे हम लगाते हैं। लेकिन हमसे ज्यादा तो बड़े अंग्रेज हैं जो हमारे देश से लूटते हैं और अपने यहां ले जाते हैं, और लूटते हुए जो लेते हैं उससे हमारा शोषण करते हैं, लेकिन हम जो लूटते हैं वो देश के लिए लूटते हैं। तो आप देखिए, काम तो वो भी गाड़ी लूटने का करते थे, लेकिन वो जो लूटते थे वो संपत्ति का उपयोग क्रांतिकारियों के लिए, देश के लिए होता था, जो गरीब है उनके लिए होता था। लेकिन अंग्रेज जो लूटते थे उनका उपयोग हमारे दमन में होता था। तो कीर्ति तो दोनों के पास थी, लेकिन वही क्रांतिकारियों की जो कीर्ति थी वो देश उत्थान के लिए थी, जिनकी बदौलत आज हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन अंग्रेजों के पास जो कीर्ति थी उसकी बदौलत हमने 150 साल तक हमारे देश ने गुलामी सहन की। तो आप देखिए, कीर्ति होती है, प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हमें कैसी कीर्ति चाहिए? जो कीर्ति पुण्य कीर्ति हो। और पुण्य कीर्ति किसे कहते हैं? जिस कीर्ति के पास धर्म हो, जो कीर्ति धर्म में स्थिर हो चुकी हो, ऐसी कीर्ति ये पुण्यशाली कीर्ति है। धर्म से स्थिर होने वाली कीर्ति पुण्यशाली कीर्ति। कीर्ति हमें आए मगर धर्म के साथ स्थिर न हो, तो
भगवान विष्णु धर्म का रूप है, इसीलिए उन्होंने अपना धर्म बजाया कि तुरंत भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए। तो कीर्ति कहां स्थिर होनी चाहिए? कीर्ति धर्म में स्थिर होनी चाहिए। और हमारा धर्म क्या है? कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग धर्म होते हैं। कर्तव्य के साथ कर्तव्य ही धर्म है। धर्म की व्याख्या अलग अलग हो जाती है, लेकिन कर्तव्य उसे हमें धर्म मानना है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि अपने विद्यार्थी को वो बिना पैसे लिए सिखाए, अपने स्कूल में सिखाए, और ऐसा सिखाए जो उसके कोर्स में ना हो, उसके बाहर का भी हो, और ऐसा सिखाए जहां पुनरावर्तन हो, जहां रिवीजन हो। कोर्स बाकी नहीं रहना चाहिए, उतना विद्यार्थी को वो सिखाए। वो शिक्षक का कर्तव्य होता है। लेकिन शिक्षक विद्यार्थी को न सिखाए और अपने ट्यूशन में जो आए उसको ही सिखाए, भले उसकी कीर्ति हो, लेकिन ये पुण्यशाली कीर्ति नहीं। पुण्यशाली कीर्ति का अर्थ है हमारा कर्तव्य हम प्रामाणिक रूप से करें, जहां हमें कुछ मिले या न मिले। डॉक्टर अपना कर्तव्य, उसे कुछ मिले या न मिले, लेकिन दूसरों को बचाने में अपना कर्तव्य वो करे, उसे कहते हैं पुण्य कीर्ति। सत्ता पे ऊपर बैठने वाला अपना कर्तव्य, उसे कुछ मिले या न मिले, प्रजा के हित में अपना पूरा काम करे, उसे कहते हैं पुण्य कीर्ति। और पुण्य कीर्ति उसे कहते हैं जहां हमारे राष्ट्र को हम सामने रखें और हमारे राष्ट्र का सम्मान हो, ऐसा जब हम काम करें तो उसे कहते हैं पुण्य कीर्ति। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा धर्म हमारा राष्ट्र है। हमारा आध्यात्म तो धर्म है, लेकिन ये आध्यात्म मिला कहां से है? इसी देश से हमें मिला है। तो आप जो भी कुछ करें उसमें आपके देश का गौरव बढ़े, ऐसा जो भी कुछ आप काम करो तो आप समझ लीजिए कि यह पुण्य कीर्ति है। तो हमें जीवन में क्या चाहिए? हमें जीवन में पुण्य कीर्ति चाहिए। पुण्य कीर्ति का अर्थ होता है जहां कीर्ति हमारी धर्म में स्थिर हो, ऐसी कीर्ति। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप कर्ण को दानेश्वरी कहते हैं, लेकिन कर्ण से भी ज्यादा बड़ा दानेश्वरी तो युधिष्ठिर है। तो कैसे? नहीं, वो भी युधिष्ठिर भी बड़ा बड़े यज्ञ करता है, साधुओं को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता है, तो वो धर्मराज भी है। तो केवल कर्ण ही दानेश्वरी नहीं है, युधिष्ठिर भी दानेश्वरी है। भगवान ने सोचा नहीं, बात तो बराबर है, दानेश्वरी तो दोनों है। चलो एक काम करता हूं, परीक्षा ही ले लेता हूं। भगवान गए। भगवान पहले युधिष्ठिर के पास गए कि हे युधिष्ठिर, मुझे थोड़ी चंदन की लकड़ियां चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, मैं हवन करता हूं, मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए। क्योंकि बारिश की सीजन है, मौसम है, चंदन की लकड़ियां जंगल में मिलेगी नहीं, और मैं यज्ञ नहीं करूंगा तो मैं मेरा ब्राह्मण धर्म में कैसे नहीं पाऊंगा। तो मुझे यज्ञ करने के लिए लकड़ियां चाहिए, तुम अगर दे सकते हो तो मुझे दे दो। युधिष्ठिर ने कहा कि अभी तो बारिश है, मैं लकड़ियां कहां से लाके दूंगा। एक काम करो, ये बारिश की सीजन चली जाए, बाद में आना, मैं तुम्हें ढेर सारे चंदन की लकड़ियां दे दूं। भगवान कर्ण के यहां गए, आधी रात को उसे उठाया, बोले क्या है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं हवन करना चाहता हूं, बरसात के कारण चंदन की लकड़ियां मिलती नहीं, मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए। अगर मैं यज्ञ नहीं करूंगा तो मेरा धर्म में कैसे पालन करूंगा। कर्ण ने सोचा बात तो बराबर है, बारिश है, कैसे लकड़ियां ला पाएगा। एक काम कर, ठहर, जाना नहीं है, मैं अभी तुझे लकड़ी देता हूं। कर्ण ने जो अपने कक्ष का जो दरवाजा था, वो चंदन की लकड़ी से बना हुआ दरवाजा था, वो दरवाजा तोड़ा और उसे दे दिया, जाओ ये दरवाजा लेके जाओ और तुम्हारा हवन कर दे। अब आप देखिए, युधिष्ठिर ने कहा बाद में आना, कर्ण ने अपने कक्ष का दरवाजा तोड़ के उसे दे दिया कि आया है तो तू लेके जा, ऐसा दरवाजा तो मैं बाद में भी किसी भी लकड़ी से बना दूंगा, लेकिन तेरा धर्म जो है वो यज्ञ तेरा धर्म है, इसे तुझे निभाना होगा। और मेरा धर्म है दान देना, तो मेरा रहे या न रहे, तेरे धर्म का पालन करना भी मेरा धर्म है। तो मैं तुझे मेरा
दरवाजा मैं तोड़ के दे रहा हूं। अब आप देखिए, दोनों के पास कीर्ति थी, लेकिन पुण्य कीर्ति किसके पास थी? कर्ण के पास। कि कर्ण ने समझा मेरा धर्म क्या है, आने वाला खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, मेरा धर्म है। अपने घर का दरवाजा उसे दे दिया। चाहे तो युधिष्ठिर भी दे सकता था, युधिष्ठिर ने नहीं दिया। तो युधिष्ठिर के पास कीर्ति थी, प्रतिष्ठा थी, सब था। अब कीर्ति नहीं थी, सब था उसके पास। लेकिन कर्ण के पास जो था वो पुण्य कीर्ति थी। और वही पुण्य कीर्ति के कारण कर्ण जब मरा तो ऐसे कहा जाता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान कृष्ण ने किया। दो ही व्यक्ति ऐसे थे जहां भगवान रोए। एक अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुआ तो भगवान की आंखों से आंसू आए, और जब कर्ण गया तो भगवान की आंखों से आंसू आए कि ये जो ऐसी विभूति थी जो चली गई, बाद में ऐसी कोई आएगी नहीं, इनकी जगह खाली की खाली रहेगी। जब भगवान की आंखों से भाव के आंसू बहने लगे तो ये आंसू अंतर के आंसू होते हैं। तो समझ लीजिए कि उन्होंने जो कमाया, कर्ण की कीर्ति कर्ण ने कमाई, अभिमन्यु की कीर्ति अभिमन्यु ने कमाई, ये पुण्य कीर्ति थी। और पुण्य कीर्ति उसे ही कहते हैं। हम भले जाए, हम मर जाए, फिर भी हमारे बाद बरसों तक हमारा नाम लोग लेते रहे। हमारा नाम लेने में किसी को दुख न हो, हमारा नाम लेने में किसी को घृणा न हो। हम ऐसा कुछ करके जाए जो गौरव के साथ हमारा नाम लिया जाए, उसे कहते हैं पुण्य कीर्ति। हम हमारे गुरु दरबार में जितने भी कार्य करते हैं ये पुण्य कीर्ति के कार्य है। और उस कार्य में जब आप जुड़ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको भी जो प्राप्त होती है ये पुण्य कीर्ति प्राप्त होती है। इसलिए कल का जो कैंपेन चला ये क्या था? पुण्य कीर्ति। हम हमारे देश को क्या दे सकते हैं? देश ने हमें सब कुछ दिया है, हम उसको कुछ नहीं दे सकते। अगर देना चाहे तो बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम कुछ नहीं दे सकते। तो क्या करें? तो जब गणतंत्र दिवस हो और जब स्वतंत्र दिवस हो तो हमारे देश को हम सम्मान तो दे, हमारे देश का हम गौरव करें। और वो गौरव हमने कैसे किया? तिरंगा मेरी शान, तिरंगा मेरी जान। तो जो तिरंगे की शान है वो जान के रूप में हमारे हृदय में भी वो तिरंगा है। ऐसा हमने कल कैंपेन किया। तो हमारे देश के लिए हम मान प्रकट करें, हम सम्मान प्रकट करें। ये जो कर्म है ये कर्म भी कीर्ति है, ये कर्म की ख्याति भी कीर्ति है। लेकिन कैसी कीर्ति? पुण्य कीर्ति। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पुण्य आप दान देके ही कमाओ। पुण्य सम्मान देके भी आप कमा सकते हो, लेकिन ये ऐसा पुण्य है जो अंदर प्रकट होता है, बाहर से नहीं आता। हमारे आश्रम से जितने भी काम होते हैं और उस काम में सब जो आप जुड़ते हो, लिख लीजिए, उसमें जो आपको प्राप्त होगी ये पुण्य कीर्ति मिलेगी। आपके जीवन में पुण्य कीर्ति आएगी। ये ऐसी कीर्ति है, जब आपके जीवन में आपत्ति आई तो समझ लीजिए भगवान उसी का उपयोग आपके जीवन में करेगा। माँ बाप जયારે કંઈ સારું કરે અને છોકરા ભલે કંઈ ન કરતા હોય, પણ છોકરાને જ્યારે એ વસ્તુનો ફાયદો થઈ જાય તો ત્યારે છોકરાએ સમજવું કે અમારી મહેનતથી નથી, અમારા મા બાપે કરેલી આ ભક્તિથી આ પ્રાપ્ત થાય છે। તમે અહીંયા દાન કરો, એ દાનમાંથી તમને જે મળે તે પુણ્ય કીર્તિ। તમારા છોકરાઓ કંઈ જ નથી કરતા, બેઠા છે ઘરે, પણ બધું એને મળે છે, આ પુણ્ય કીર્તિ। તમે અહીંયા ભંડારો કરો, એની જે પુણ્ય કીર્તિ એ તમારા સંતાનોને મળે। તમે મંદિરમાં જે દાન આપો એ પુણ્ય કીર્તિ સંતાનોને મળે। અહીંયાથી જે રાષ્ટ્ર માટે આપણે નેત્ર યજ્ઞ કર્યો, એ નેત્ર યજ્ઞ જેણે જેણે આવીને કર્યો એની જે પુણ્ય કીર્તિ એ તમારા સંતાનોને મળે। તમારું બ્લડ ડોનેશન, તમે અહીંયા જે બ્લડ ડોનેશન કર્યું એ આપણે કેમ કર્યું? રોગીઓને બ્લડ પહોંચે એટલા માટે। તો જે તમે કર્યું છે લખી રાખજો, તમારા સંતાનોને ये कोई ना कोई रीते प्राप्त થશે। तो इसे कहते हैं पुण्य कीर्ति। और हमें जो प्राप्त करनी है ये पुण्य कीर्ति हमें प्राप्त करनी है। कीर्ति नहीं चाहिए, ऐसी कीर्ति
जो हमारे जाने के बाद भी रहे और हमारे परिवार को उसका पुण्य प्राप्त हो। और वही पुण्य कीर्ति को कहा गया है माँ भगवती लक्ष्मी विष्णु वक्ष स्थले स्थितम लक्ष्मी, और वो होती है पुण्य कीर्ति। तो हमारे जीवन में हम भक्त के रूप में जुड़े, हम हमारी सेवा भाव करते हैं, ये जो भी कीर्ति है पुण्य कीर्ति के रूप में प्राप्त होगा और उसका ही उपयोग हमारे परिवार को सालों सालों तक होता रहेगा। तो आज के गुरुवार पर हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें सब कुछ दिया है, हमें लक्ष्मी भी दी, हमें धन भी दिया, हमारे जीवन में प्रतिष्ठा भी दी, हमें समृद्धि भी आपने ही दी है। तो ये भगवान हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ आपने हमें दिया है ये हमारे अंदर से ही प्रकट हो रहा है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप जो कार्य हमसे करवा रहे हो वो कार्य करने के बाद हमें कीर्ति नहीं, हमें पुण्य कीर्ति चाहिए, और ऐसी पुण्य कीर्ति हमें प्राप्त हो जो पुण्य कीर्ति के ऊपर धर्म की छाया हो, और ऐसी पुण्य कीर्ति जो पुण्य लक्ष्मी जो हमें प्राप्त हो रही है, पुण्य कीर्ति जो हमें प्राप्त हो रही है, उसका सदुपयोग लोक कल्याण में हो और उसका फल हमारे परिवार में सुख शांति के रूप में आए। ऐसी प्रार्थना हम आपके चरणों में करते हैं और 25 बार हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं। गोरक्ष झलंदर चरपटाश्च अड़बंग कानीफ मच्छेंद्राज्य चौरंगी रेवाणक भरतवरी सज्ञा भूम्यांब बुरननाथ सिद्ध। जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय। तिरंगा मेरी शान, तिरंगा मेरी जान આ કેમ્પેન કરવામાં આવ્યું। 350થી વધુ ગામોએ તિરંગો લહેરાવ્યો। નાના બાળકોથી માંડીને 90 વર્ષના વડીલો સુધી ઉત્સાહભેર આ કેમ્પેનની ઉજવણી કરવામાં આવી। અને આ જે પણ અહીંયાથી સૂચન કરવામાં આવ્યું તે ફોટોન મેજિકના માધ્યમથી બધા કર્યું છે, પોતાની રીતે પણ કર્યું છે। તો આવા જે પણ રાષ્ટ્રહિતના કેમ્પેન હોય, રાષ્ટ્રભાવના જગાડનારા, એવા જેમ જેમ કહેવામાં આવે તેમ આપણે બધાએ જ અહીંયાથી કરતા રહેવું। ત્યાર પછી બીજી વાત, આજનો ભંડારો બિપિનભાઈ ભાણાભાઈ પટેલ દેવસર તરફથી છે। આજના ભંડારામાં રોટલી, પાપડી સક્કરિયા બટાકાનું શાક, દાળ ભાત, મરચાંનું અઠાણું છે। અમેરિકન ડ્રાયફ્રૂટનો શ્રીખંડ નવીનભાઈ ચૌધરી તરફથી આવેલો છે, અને જલેબી ધર્મેશભાઈ નટુભાઈ, એમના નવા લગ્ન થયા એટલે આરતી કરી તો એમના તરફથી આ જલેબી છે। તો જેમના તરફથી આજનું મહાપ્રસાદમાં યોગદાન છે, તમામ પરિવારો ઉપર ભગવાનની કૃપા રહે, બધાના જીવનમાં કીર્તિ મળે, બધાને પુણ્ય કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય, બધાનું જીવન સુખી થાય, એવી प्रार्थना गुरुदेवना चरणों में आज गुरुवार हूँ करूँ छूँ। तो आज के गुरुवार पर बस इतना ही। हमें भी हमारे जीवन में ये कार्यों में लगा रहना है और हमारा जीवन पुण्य कृति प्राप्त करे, ऐसा ही ज्ञान हमें भी प्राप्त करना है। तो सभी भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छेंद्र समर्थ और आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।